Hello friends, welcome to our channel Simplified Standards. Today in this video we will discuss about Part QW Article 1, that is Welding General Requirements. So what can you expect from this video? You will know about Part QW Overview and QW 100, Scope of Article 1 and rest of all as shown here. Now let's get started with overview of Part QW. Part QW is further divided into Article 1, 2, 3, 4 and 5. Article 1 deals with welding general requirements. Article 2 deals with WPS and PQR. And Article 3 deals with personal qualifications, that is for welders. So Article 3 is for basically welding performance qualification. Article 4 welding data. Article 4 is basically warehouse or storage zone, and this section is referred when Article 1st, 2nd and 3rd sends you there. And the last one is Article 5, that is standard welding procedure specifications. Now let's get started with QW 100. The scope of Article 1 applies the preparation of welding procedures. In the short form, it's WPS and qualification of welding procedures. Also, qualification of welders, welding operators for all types of manual and machine welding process. Now, moving towards QW 101, that is procedure specifications. A WPS used by organization for production welding shall be qualified in accordance with Article 2nd, or it shall be AWS standard welding procedure specification listed in mandatory appendix E and adopted by that organization in accordance with Article 5. Now moving towards QW 102, performance qualification. It's all about personal qualifications, that is for welders, and the purpose of performance qualification test is to determine the welder's ability to deposit sound weld metal. Now moving towards QW 103, it's all about responsibility. So QW 103.1, under this code each organization shall conduct the test required for qualifying the welding procedures used in construction of weldments built for the performance of welder and welding operators who applies these procedures. Now moving towards QW 103.2, under this code each organization shall maintain record of results obtained in welder and welding operator performance qualification. The recommended format for performance qualification record is given in non-mandatory appendix B, that is format number QW 484A and B. Now moving towards QW 110, that is weld orientation, which is illustrated in figure QW 461.1 and 461.2, and we will explain this figure using this template, which will be easier to understand. And the weld orientation consideration is required during the welder qualification test. Figure QW 461.1 एक्सप्लेन करता है पोजीशन ऑफ वेल्ड्स. फॉर एग्जांपल, अगर फ्लैट पोजीशन है, हम डायग्राम का रेफरेंस लेके देख रहे हैं, उसको डायग्राम में ए पोजीशन दिखाया है फ्लैट पोजीशन का, तो उसका एक्सिस ऑफ इंक्लाइनेशन कितना रख सकते हैं? 0 to 15 डिग्री, मतलब 0 डिग्री में भी रख सकते हैं और इंक्लाइनेशन 15 डिग्री तक हो सकता है. ऐसा नहीं कि पूरा 0 डिग्री में फ्लैट पोजीशन रहेगा, तो हमको 15 डिग्री तक रख सकते हैं, तो उसको हम फ्लैट पोजीशन बोलेंगे. और उसका फेस कितना हम वेल्डिंग कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे क्या है, डिग्री में दिया हुआ है, कितना डिग्री में फेस वेल्डिंग किया जा सकता है, कौन कौन सा, मतलब कितना फेस कवर हो सकता है. तो फ्लैट पोजीशन ए डायग्राम दिया हुआ है फिगर में, जो हमने ड्रॉ करके यहाँ पे रखा है, तो वो 150 to 210 डिग्री पे है.
तो हमारा 0 डिग्री हमेशा नीचे रहेगा, वो रेफरेंस हम नीचे से लेंगे। यहाँ 1 से 80 है तो नीचे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से हम रेफरेंस क्लॉकवाइज में देख के लेते हैं, तो हमारा 150 डिग्री यहाँ पे आता है। ये हमारा 150 डिग्री, 150 डिग्री टू 210 डिग्री यहाँ तक आता है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो एरिया है वो फ्लैट पोजीशन में गिना जाएगा, और फ्लैट पोजीशन का ये फेस ही इतना ही वेल्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट पोजीशन है हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन डायग्राम का रेफरेंस बी पॉइंट दिया है हमने, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करके रखा है। उसमें क्या है, एक्सिस ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो भी 0 to 15 डिग्री है। जो फ्लैट पोजीशन में 0 to 15 था, सेम यहाँ भी 0 to 15 डिग्री ही है। तो इसमें हमारा फेस कितना रहेगा, तो वो जो डिग्री में दिया है, पहला जो दिया है हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए 80 to 150 डिग्री। तो हमारा हमेशा जैसे कि रेफरेंस पोजीशन 0 इस साइड है, हमेशा नीचे ही रहेगा। तो वहां से हम 80 डिग्री, तो 80 to 150 देखना है, तो 80 डिग्री हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे 80 to 150। तो ये पहला हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए एक हम 80 to 150 ये एरिया, ये फेस है, वो हम वेल्डिंग कर सकते हैं। सिमिलरली इसका अपोजिट साइड 2 से 10 to 2 से 80 डिग्री, वो इस साइड हमारा यहाँ पे आ रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए। तो 2 से 10 से 2 से 80 डिग्री ये फेस हम इतना वेल्डिंग कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ये 2 से 10 एंड 2 से 80 कैसे आया, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा 80 to 150 है, तो 3 से 60 माइनस 150 किया तो ये 2 से 10 आया, एंड 360 माइनस 80 किया तो 280 आया। उस हिसाब से मतलब जितना एक साइड रहेगा एक फेस का, सेम अपोजिट वही फेस कवर होगा। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए हो गया। नेक्स्ट है ओवरहेड पोजीशन। ओवरहेड पोजीशन में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, 0 to 80 डिग्री। तो क्या है, हम इसको पूरा 90 नहीं कर सकते, 80 to 0 डिग्री के बीच में कहीं भी आ सकता है ये। तो 0 to 80 डिग्री में कहीं भी आ सकता है। इसका फेस का रोटेशन कितना हो सकता है, जिस एरिया में वेल्डिंग परमिट किया जा सकता है। तो पहला है इसमें 0 to 80 डिग्री, 0 to 80 डिग्री। तो हमारा 80 डिग्री यहाँ पे है, 0 हमारा जस्ट इसका बॉटम में है। तो क्लॉकवाइज से हम अगर देखेंगे तो हमारा 80 डिग्री यहाँ पे आता है, ये हमारा 0 है तो 80 डिग्री यहाँ पे आता है। तो 80 डिग्री हमारा यहाँ पे आया, तो इतना एरिया हमारा ये फेस 0 से 80 डिग्री तक का जितना फेस है वो हम वेल्डिंग कर सकते हैं ओवरहेड पोजीशन में। सेम इसका अपोजिट में वो डिग्री कितना आएगा, 280 to 360, 280 to 360। हम उसको पलटा के यहाँ देख सकते हैं, 280 to 0 से ये 280 to 360, ये हमारा 0 एंड 360 वो एक ही पोजीशन है। तो इतना जो फेस है वो ओवरहेड में वेल्डिंग किया जा सकता है। मतलब 0 to 80 एक इस साइड का है, तो सेम अपोजिट साइड का भी उतना ही डिग्री में जो दिया हुआ है, 0 to 80 एंड 80 to 360। अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 2 है, एक 15 to 80 डिग्री है, एक 80 to 90 डिग्री है। जिसमें अगर हम 15 to 80 डिग्री तक अगर टेस्ट पीस को रखते हैं तो उसका हम कितना फेस वेल्डिंग किया जा सकता है, तो उसमें 80 to 280 डिग्री तक हम वेल्डिंग किया जा सकता है। तो 80 डिग्री हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ से लेके 280 तक ये जो एरिया है, ये यहाँ तक का जो फेस है वो पूरा हम वर्टिकल में कवर कर सकते हैं वेल्डिंग के लिए। एंड इसी में नेक्स्ट इंक्लाइनेशन है 80 to 90 डिग्री। 80 to 90 मतलब ये 90 डिग्री रहा या 80 डिग्री में ये बीच में आया तो 360 में हम वेल्डिंग कर सकते हैं। मतलब इसका पूरा में हम वेल्डिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग 2G पोजीशन बोलते हैं। ये मस्टली ये वेल्ड ओरिएंटेशन इसके लिए दिया है कि ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ वेल्डर, तो वेल्डर का जो टेस्ट पीस रखते हैं तो 1G अगर पोजीशन में टेस्ट मारता है तो उसका रोटेशन ऑफ फेस कितना रहेगा, इसके लिए मस्टली दिया गया है। Now moving towards QW120 टेस्ट पोजीशन फॉर ग्रूव वेल्ड्स।
Under this code, for test coupon given in QW 461.3 and 4, the angular deviation of plus minus 15 degree from the specified horizontal and vertical plane and angular deviation of plus minus 5 degree from the specified inclined plane are permitted during the welding. इसका मतलब ये है, अगर हमारा टेस्ट पीस का पोजीशन 1G 2G, इधर ये फ्लैट पोजीशन है 1G या 2G वर्टिकल पोजीशन है, तो उसका एंगुलर डेविएशन जो है प्लस माइनस 15 डिग्री रख सकते हैं। अगर ये 2G पोजीशन है तो इसका क्या थोड़ा सा इंक्लाइनेशन रह सकता है, प्लस माइनस 15 डिग्री रह सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो बोला है, एंगुलर डेविएशन ऑफ प्लस माइनस 5 डिग्री फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंक्लाइन प्लेन। अगर पोजीशन हमारा 6G पोजीशन पे है, 45 डिग्री पे है, तो उसका एंगुलर डेविएशन प्लस माइनस 5 डिग्री हो सकता है। ड्यूरिंग द वेल्डर क्वालिफिकेशन अगर हम 45 डिग्री पे वो 6G पोजीशन पे टेस्ट पीस रखते हैं तो उसका प्लस माइनस 5 डिग्री डेविएशन रख सकते हैं टॉलरेंस। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 45 पे ही रखना है, 5 डिग्री टॉलरेंस वैल्यू रख सकते हैं, यही समझाया है इसमें। नाउ मूविंग टुवर्ड्स QW 121 प्लेट पोजीशंस। प्लेट पोजीशन को डिस्क्राइब किया है 4 पोजीशंस में, 1G 2G 3G एंड 4G। 1G पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें प्लेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। सपोज ये प्लेट है, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है एंड वेल्ड मेटल इज डिपोजिट फ्रॉम अबव द प्लेट। मतलब वेल्ड मेटल जो डिपोजिट होगा प्लेट के ऊपर से डिपोजिट करेंगे तो उसको 1G पोजीशन बोलते हैं। सिमिलरली अगर वो 4G पोजीशन है ओवरहेड, अगर प्लेट ऊपर है और डिपोजिट अंडरनीथ नीचे से करते हैं तो वो 4G पोजीशन हो जाएगा। 1G पोजीशन है जो ऊपर से डिपोजिट करते हैं एंड 4G पोजीशन जो उसका अपोजिट साइड है नीचे से डिपोजिट करते हैं वो ओवरहेड पोजीशन हो जाता है, व्हिच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन। उसके बाद है 2G पोजीशन। 2G पोजीशन क्या है, प्लेट वर्टिकल पोजीशन में है, ये वर्टिकल पोजीशन है एंड एक्सिस ऑफ द वेल्ड हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो उसको 2G पोजीशन बोलते हैं। सिमिलरली 3G पोजीशन, 3G पोजीशन में क्या है, प्लेट का पोजीशन वर्टिकल है एंड एक्सिस ऑफ वेल्ड भी वर्टिकल है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल 3G पोजीशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स QW 122 पाइप पोजीशंस। पाइप पोजीशन में 1G 2G 5G एंड 6G एज पर दिस कोड। तो पहला पोजीशन है 1G पोजीशन। 1G पोजीशन में पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है एंड वेल्डिंग इज कैरीड आउट फ्रॉम अबव द पाइप। वो ये जो पोजीशन है ऊपर का जो पार्ट आएगा उस फेस में हम वेल्डिंग कैरी आउट करेंगे एंड ड्यूरिंग द 1G पोजीशन इतना अगर वेल्डिंग हो गया तो फिर पाइप को हम रोल आउट करते हैं, फिर उतना वेल्डिंग कैरी आउट करके फिर नेक्स्ट रोल आउट करते हैं। सिमिलरली 5G पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ही रहेगा मगर वेल्डिंग इज कैरीड आउट इन 360 डिग्री। इसमें क्या है, पाइप हमारा रोल नहीं होगा। नेक्स्ट है 2G पोजीशन। 2G पोजीशन में क्या है, पाइप हमारा वर्टिकल पोजीशन में रहेगा एंड वेल्डिंग विल बी कैरीड आउट, जो वेल्डिंग का हमारा एक्सिस रहेगा वो हॉरिजॉन्टली रहेगा पूरा 360 डिग्री में। एंड 6G पोजीशन है जो पाइप हमारा 45 डिग्री में रहेगा एंड वेल्डिंग इज कैरीड आउट ऑल अराउंड द पाइप, वो हमारा 6G पोजीशन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स QW 130 टेस्ट पोजीशन फॉर फिलेट वेल्ड्स, which is illustrated in figure 461.5 and 461.6. The angular deviation of plus minus 15 degree permitted from the specified horizontal and vertical plane. It means फिलेट वेल्ड का टेस्ट कूपन हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन में है तो टॉलरेंस वैल्यू प्लस माइनस 15 डिग्री रख सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स QW 131 plate position for fillet welds, which is illustrated in figure QW 461.5. 1F position. 1F position, 1F means fillet position. Here F means fillet position. इसमें प्लेट को उस हिसाब से रखना है कि
वेल्ड ज्वाइंट के ऊपर से वेल्डिंग किया जा सके। और थ्रोट ऑफ द वेल्ड, ये जो थ्रोट है वो थ्रोट ऑफ द वेल्ड वर्टिकल होना चाहिए। 1F पोजीशन को डाउन हैंड पोजीशन भी कहा जाता है। देन 2F पोजीशन, 2F पोजीशन में एक्सिस ऑफ द वेल्ड हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये जो वेल्ड एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। 3F पोजीशन, इन 3F पोजीशन एक्सिस ऑफ द वेल्ड वो वर्टिकल होना चाहिए। एंड 4F पोजीशन, 4F पोजीशन welding is carried out from underside of the joint with axis of the weld horizontal होना चाहिए। मीन्स वेल्ड ये जो पोजीशन है उसके क्या नीचे से वेल्डिंग कैरिड आउट होना चाहिए, with axis of the weld horizontal होना चाहिए। That is 4F position and which is the most difficult position. Now QW132 pipe position for fillet welds, which is illustrated in figure QW461.6. 1F position. In 1F position, the pipe is inclined at 45 degree and weld is deposited from above the pipe and pipe is rotated during the welding. The axis of weld is horizontal and throat is vertical. 2F position. In 2F position, pipe is vertical and axis of the weld is horizontal. In this position, pipe is fixed and it cannot be rotated. 2FR position. In 2FR position, the pipe is horizontal and the welding is carried out horizontally. In this position, pipe is rotated during the welding. 4F position. In 4F position, pipe axis is vertical so that welding is carried out on the underside of horizontal surface and the axis of the weld is horizontal against the vertical surface. 5F multiple position. In 5F position, axis of the pipe is horizontal and welding is carried out in 360 degree. In this position, pipe is not rotated.